سفیر ملک سے نہیں نکال سکے ہم، سیدھی بات ہے. وہ ہم سے ہمارے مارچ سے پہلے، جب مارچ شروع ہوا وہ خود چلا گیا، خود ہی گیا ہے، یہ نہیں نکلا. سیدھی بات ہے، ملک بدر نہیں ہوا. میں ابھی آج بھی کہتا ہوں وہ ملک بدر نہیں ہوا. شاہ جی نہیں ہوا ملک بدر، میں کھلا کہتا ہوں ملک بدر نہیں ہوا. مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں ہوا بھائی، انہوں نے نہیں کیا. ہم نے آخری دم تک زور لگایا مصنوعات کا بائیکاٹ، لیکن پہلا مسئلہ سفیر تھا. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتا دیا کہ وہ نہیں گیا ملک سے، بدر نہیں ہوا ہم سے، اس کو ذلیل کر کے نہیں بھیج سکے. ٹھیک ہے. بابا جی سے آپ کا تعلق ہے؟ الحمدللہ. آج نہ وضو کر کے سوئیے گا، اس طرح سوئیے گا. بابا جی آپ کو جواب میں ویسے بھی وضو میں سوتی ہوں روز، اور اگر نہ دیا تو پھر میں جو رمضان ہوں جائے. ایکچولی بات ایسی ہے کہ بابا جی کا جو پہلا عرس تھا نا، کیونکہ اس سے کچھ دن پہلے سعد بھائی کی رہائی ہوئی تھی جیل سے، تو میں نے عرس کا دوسرا یا تیسرا دن تھا غالباً، میں نے نا آپ ہی سے بات کی، سعد بھائی کی ہمشیرہ سے، کہ مجھے نا آپ سے بات کرنی ہے ضروری ہے. انہوں نے کہا جی ٹائم نہیں ہے، عرس ہے اور یہ وہ معاملات. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، میں اس کے بعد ادھر رک جاؤں گی 1 دن 2 دن 3 دن، جب آپ کو ٹائم ملا تو آپ پلیز میری بات سن لیں، بہت ضروری بات ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں تقریباً 4-5 دن وہیں رکی، تو میری ملاقات ہوئی ان سے. میں نے ان سے بات کی آپ اس فرانس والے معاملات پہ سارا، کہ ہمارا یہ معاہدہ ہوا تھا بابا جی کے ساتھ، اس کے بعد یہ 12 اپریل کو سعد بھائی گرفتار ہوئے، پھر 20 تک دھرنا اور وہ ساری معاملات. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی سفیر چلا گیا اور وہ سارا کچھ ہو گیا، معاہدہ پورا ہو گیا ہمارا. میں نے کہا ایسے کیسے پورا ہو گیا؟ مطلب وہ انٹرنیشنل سارے انٹرنیشنل ریلیشنز، ڈپلومیٹک ریلیشنز، وہ اتنے آرام سے کیسے پورا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہو گیا. میں نے کہا نہیں، ان سے ہم پوچھنے کا تو حق رکھتے ہیں نا. تو کہتی ہیں پوچھیں تو ان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اور خیر ایسی باتیں. تو میں نے اچھا ان سے یہ عرض کی، میں نے کہا آپی مجھے بالکل بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا آپی میں سعد بھائی سے خود بات کر سکتی ہوں، میں نے ان سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں سعد بھائی سے نہیں ملاقات ہو سکتی، اور اس معاملہ پہ تو بات کرنا ان سے بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ بہرحال مجھے نہیں رسپانس ٹھیک ملا. اس کے بعد یہ نومبر کی بات ہے، بابا جی کے عرس کے کچھ دن بعد کی لاسٹ ٹائم فرسٹ جو عرس تھا. تو اس کے بعد دسمبر میں شیخو پورہ شاہ صاحب جو نائب امیر ہیں تحریک کے، ظہیر الحسن حسن شاہ صاحب، ان سے میں ملی جا کے ان کے آستانے پہ. ان سے میں نے عرض کیا ساری باتیں. ان سے تو بلکہ میں نے یہ عرض کیا، میں نے کہا آپ کی تحریک بھی بچ گئی، آپ کا امیر بھی بچ گیا، پرچے 4 شیڈول سارا کچھ ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اور اگر رہ گئی تو وہ ایک چیز رہ گی، ناموس رسالت، جو بابا جی دے کے گئے تھے مشن، اور جس کے بارے میں بابا جی نے ہمیں یہ پڑھایا تھا کہ ہمارا سب کچھ حضور کے لیے حاضر ہے. شاہ جی نے بات تو سنی، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، لیکن کوئی رسپانس ٹھیک سے نہیں مجھے ملا اگین. اس کے بعد دسمبر کے بعد پھر میں چونکہ منڈی بہاؤدین سے بلانگ کرتی ہوں، منڈی بہاؤدین کے یہاں ہمارے ضلعی امیر نعیم چٹھا صاحب، نعیم بھائی سے بھی میں نے بات کی ان ڈیٹیل، بلکہ ان سے 2-3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. میں تھی ساتھ، میرے فادر بھی گئے تھے. تو ان سے بھی میں نے آخر میں یہ عرض کیا کہ میں نے سعد بھائی سے بات کرنی ہے، سعد بھائی سے ملنا ہے. تو وہ میرے فادر کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی پاگل، اس کا دماغ خراب ہے. تو میں نے کہا نہیں، اگر دماغ بھی خراب ہے تو اگر عمر ممبر پہ بیٹھے ہوں تو ان سے ایک عورت کھڑی ہو کے اگر وہ حق مہر مقرر کر رہے ہوں، تو انہیں ایک عورت جب کھڑی ہو کے یہ کہہ سکتی ہے کہ عمر کون ہوتا ہے ہمارے مہر کا فیصلہ کرنے والا، تو عمر اپنی غلطی بھی تسلیم کریں. تو پھر سعد رضوی سے بھی تو میں اگر پاگل ہوں تو پاگل ہی سوال تو کر سکتے ہیں نا، کہ مدینہ پاک میں پاگل عورت جب حضور کو مسجد نبی کے سامنے لے کے کھڑی ہو گئی تھی، وہ جتنی دیر بولتی رہی سرکار سنتے رہے. تو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. خیر نعیم بھائی نے بھی کہا کہ نہیں میں نہیں اس کو لے کے جاؤں گا. تو میرے فادر تھے ساتھ، انہوں نے کہا میں ساتھ چلوں گا، بات تو کرنے دینا اس کو. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے بھی جواب دیا. اس کے بعد بھی میں نے جو یہ فاروق الحسن صاحب ہیں ان سے ملاقات کی، ان سے بھی عرض کیا. انہوں نے تو کہا سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، جو سعد کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا غلط، کیونکہ وہ بابا جی کی اولاد ہے. اگر اسے سمجھ نہیں آئی تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا حضرت جی آرام سے بات تو سنیں نا، کہ اگر صدیق اکبر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے تب تک چلنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کروں، تو میں نے کہا اگر وہ یہ فرما سکتے ہیں تو پھر سعد کون ہوتا ہے؟ کم سے کم ہم اس سے پوچھ بھی نہیں سکتے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ مرکز چل جائیں، آپ بات کر لیں، یہ ہے تو وہ ہے، ہم تو ٹھیک ہیں، ہمارے سب لیے تو سب ٹھیک ہے، اور یہ وہ ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا حسن رضا صاحب سے میں نے ملاقات کی، ان سے عرض کیا میں نے کہا آپ حضرت جی اتنی بڑی بڑی ممبر پہ بیٹھ کے ممبر پہ لوگوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں کہ میرا سب کچھ حضور کے لیے حاضر ہے، میرا کوئی قیمہ بھی کر دے حضور کے نام پہ. تو میں نے کہا ناموس رسالت کا سول پرپز، دا سینسیٹیو میٹر آف دا یونیورس، جو بابا جی سمجھا کے گئے ہیں کہ حضور کی ناموس پر کوئی کمپرومائز، کوئی بھی سر جھکا کے بات نہیں ہو سکتی. وہ بات ہوگی ایسے کہ یا مار دو یا مر جاؤ، بس اتنی سی بات ہے، اور تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. تو اس پہ کم از کم آپ پوچھ تو سکتے ہیں نا سعد رضوی سے کہ فرانس والے معاملے پہ کیا کیا ہے، کہ جیل سے آنے کے بعد خاموشی. بابا جی کے عرس پہ لوگوں کے کان ترس رہے تھے کہ کیا کر کے آئے ہیں، وہ جو معاہدہ کیا وہ ایکسپوز نہیں کیا، اس کی کنسیلمنٹ کا کیا مطلب بنتا ہے؟
उन्होंने भी ये रिस्पॉन्स किया, अलामा हसन रज़ा साहब ने भी, कोई नहीं पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मुझे मिला। और भी बहुत से लोगों से जिनका डिस्कस करना, ज़िक्र करना मुनासिब नहीं है, मैंने वो अर्ज़ की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, मुलाकात की। बल्कि साद भाई को खुद भी मैंने उनका नंबर लेके उनसे कॉल की, उनको बात की मैंने। मैंने अर्ज़ की ये कि साद भाई मुझे आपसे मिलना है, मेरी बात सुन लें। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं नहीं आपकी बात सुनूँगा, मैं नहीं मिल सकता आपसे। तो काफ़ी मैंने तरले-मिन्नत की, उन्होंने कहा मेरी ज़िद है, मैंने आपकी बात ही नहीं सुननी। ये कह के ना उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये लास्ट ईयर की बात है। तो फिर मैं कोशिशें करती रही इधर-उधर, नहीं मामला ठीक हुए। तो उसके बाद जो जून में मैं दोबारा सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब के पास मैं गई, साथ मेरे फ़ादर थे। हमने उनसे अर्ज़ की कि 24 जून की बात है। मैंने उन्हें कहा कि आप लोग सारे नहीं पूछ सकते कि अगर हाफ़िज़ सईद का बेटा सामने बैठा हुआ है, तो हाफ़िज़ सईद भी रिजाल बन गया। अब वो हरामज़ादे जो या रसूल अल्लाह कहने को शिर्क कहते हैं, वो जिनके लिए हुज़ूर का इसके को सिर्फ़ पुकारना ही वो शिर्क है, वो तौहीद की नफ़ी है, वो रिजाल बन गया। उसको बाबा जी के साथ मिला दिया। और ये तो बाबा जी की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी है कि जो सारी ज़िंदगी जिन्होंने लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगवाए, उनको उसके साथ खड़ा कर दिया जो या रसूल अल्लाह कहने को शिरक कहते हैं। तो वो रिजाल बन गया। भई उसको पूछने वाला जो कोई नहीं है। तो मैंने शाह जी से हाथ बाँध के अर्ज़ की, मैंने कहा आपको हुज़ूर का वास्ता है, कम से कम मेरी मुलाकात करवा दें, मैं उससे पूछ तो लूँ ना। आप सबसे तो वो बड़ा है, आप लोग तो नहीं पूछ सकते क्योंकि, तो मेरी इतनी मुलाकात तो करवाएँ। तो शाह जी ने मुझसे ये वादा किया कि मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा साद भाई से 3 माह के अंदर ना। मैंने कहा मुझे लिख के दें, उनसे मैंने लिखवाया, चिट पे नीचे उनके साइन किए, 3 माह टाइम लिखवाया। तो 3 माह गुज़र गए ऐसे ही, उन उसके ड्यूरिंग भी मैंने उन्हें कॉल करके याद करवाया कि आपने मुझसे वादा किया था, आपने मुझे साद भाई से मिलवाना। उन्होंने कहा जी बताते हैं, अच्छा ठीक है बताते हैं। वो बताते-बताते 3 माह ऐसे ही गुज़र गए। 24 सितंबर को 3 माह हुए, तो मैं 25 सितंबर को दोबारा उधर हाज़िर हुई उनके आस्ताने पे, तो मैंने उनके सामने वो रखा जो उन्होंने लिख के दिया था। कहते हैं 3 माह हो गए। मैंने कहा जी 1 दिन ऊपर हो गया है। 25 सितंबर था उस दिन। कहते हैं चलें ठीक है, आप मिलवाते हैं, बताते हैं आपको। मैंने कहा ये तो मैं कब से सुन रही हूँ 2 सालों से, जिससे भी बात करो करते हैं, बताते हैं, हो जाएगा, हो जाएगी बात, ठीक हो जाएगा। ये तो कोई बात ना हुई ना। भई ये तो चूं के चुनाचे अगर मगर नहीं, अगर मुहब्बत होंदी ते मुहब्बत ते इन्ने वाह होंदी है। ये तो सारे मामलात, मौलवी तकरीरें सारे ही मौजूद थे। यही तो बाबा जी ने ख़त्म किया है, तो आप फिर उस तरफ जा रहे हैं। तो ख़ैर उनसे मैंने ये अर्ज़ किया कि अब मैं इधर ही रहूँगी आपके आस्थाने पे। मैंने कहा चूँकि आप बड़े लोग हैं, आपके पास टाइम होता नहीं है, तो जब आपके पास टाइम मिले, मेरा क्या, मैं तो कुत्ता हूँ इधर बाहर, वो जहाँ आपके कुत्ते बंधे होते हैं उधर बाँध लें मुझे। तो मैं इधर ही रहूँगी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ़्ता, 2 हफ़्ते, महीना, 2 महीने, 6 महीने, जब आपको टाइम मिला, आप मेरी मुलाकात करवा दें साद भाई से। लेकिन आपने मुझसे वादा किया, या उन्हें कहा मैंने कहा मुझे इनकार करें, ताकि कल को मैं हुज़ूर के सामने ये अर्ज़ तो कर सकूँ ना जाके कि आपने मुझसे लिख के दिया था, मुझे वादा किया, या मुझे डिनाई कर दें, रिफ्यूज़ कर दें, तो या फिर आप मेरी मुलाकात करवाएँ। ख़ैर शाह जी अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी उधर रहने की। मैं आस्थाने पे रही 10 दिन तकरीबन। वहाँ मैं दरबार शरीफ पे बैठ के दलाइल क़िरात शरीफ पढ़ती थी सारा दिन। अच्छे दिन गुज़र गए। तो 11वें दिन ना उन्होंने टाइम लिया साद भाई से, तो वहाँ से शेखुपुरा से हम आए लाहौर। लाहौर मरकज़ के बाहर, अब रात को 11 बजे उधर पहुँचे, तो शाह जी ऊपर चले गए इजाज़त लेने या व्हाटएवर जो भी, तो मैं गाड़ी में वेट करती रही। 11 बजे से 12, 1, 2, सवा 2, ढाई, तकरीबन ढाई बजे, सवा 2, ढाई के दरमियान रात के मुलाकात का टाइम मिला, तो मैं ऊपर गई। साद भाई से मैंने यही अर्ज़ की कि साद भाई हमने अपनी 44 लाशें दी, हमने इतने सब कुछ बर्दाश्त किया, तो उनका मतलब ये था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, या जो भी यहूद और नसारा, कादियानी, हरामज़ादे जो भी एंटी हैं हमारे, हमारे मुखालिफ हैं, इस्लाम की जिन्हें तकलीफ़ है, जिन्हें नामूस रिसालत का मसला समझ नहीं आता, उन्हें ये तकलीफ़ थी कि हम इनके तहरीक कलअदम करके, फिर बहाल करके, इनको जेलों में बंद करके और ये सब करके हम इन्हें रोक लें फ्रांस वाले मामले पे बोलने से, ये चुप कर जाएँ। तो वो तो उन्होंने कर लिया है कि जेल से आने के बाद किसी ने भी नाम नहीं लिया, अमीर से लेके नीचे नाइब अमीर और बाकी सारे नीचे तक, आखिरी कारकुन तक। और कारकुन भी अगर कोई पूछता है तो वो उसका ऐसे साँस बंद कर देते हैं कि उसका साँस भी नहीं निकलता। तो मैंने अर्ज़ ये की साद भाई से, बड़े एहतराम से, मैंने बड़ी रिस्पेक्ट से रिक्वेस्ट की उनसे कि साद भाई कि हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हमें तो बाबा जी ने ये सिखाया, या हज़रत इमाम मालिक ने बल्कि ये सिखाया कि या तो सारी उम्मत मर जाए या बदला ले। तो बदला हम उस पे एटम बम तो तब गिराएँगे ना जब हमारे पास हुकूमत होगी। तो अब हम थर्ड पार्टी हैं पाकिस्तान की, पॉलिटिकल पार्टी, तो हमारा इतना तो बनता है कि हम उनसे जो डिप्लोमैटिक रिलेशन है उनको कट ऑफ कर सकें, सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर सकें, उनका सफ़ीर मुल्क बदर करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा सादा लोग कारकुनान है ना जो, उनको ये कहा गया है कि सफ़ीर चला गया है जी, उनकी मसनूआत का भी बायकॉट हो गया और ये सारा कुछ हो गया। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं यही रो रही हूँ सिर्फ़ 2 साल से कि मुझसे भई कोई बात करो, जो मैट्रिक पास कारकुनान है ना, या जो दरस निज़ामी पढ़े, उन्हें फांकी देना तो आसान होता है।
मैं एडवोकेट हूँ प्रोफेशनली, मैंने अर्ज़ की कि इंटरनेशनल रिलेशन, डिप्लोमैटिक रिलेशन सारे पढ़े, मुझे बताओ इतने आराम से होता है काम? अगर हुआ है तो मुझे बताओ। भई मुझे समझा दो ना, मेरा दिल जो जल रहा है, मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं पागल हूँ, तो आप लोग समझदार हैं, बड़े हैं, कम से कम मुझे समझा तो दें ना, मुझे बता तो दें कि ये नहीं बेटा ये बात ठीक है। तो आई एम एग्री टू एक्सेप्ट एनीथिंग। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग उन्होंने ये रिस्पॉन्स किया, बल्कि उन्होंने ये एडमिट किया साद भाई ने उस दिन कि सफ़ीर नहीं गया, हम नहीं निकाल सके। ना हम सफ़ारती ताल्लुकात ख़त्म कर सके हैं, तो ना वो मसनूआत वाला मसला हुआ है। बल्कि एक टर्म यूज़ करते हैं ये कि रज़ाकाराना तौर पर चला गया था। वो बड़े-बड़े मौलवी दरबारी बैठ के ना मिंबर पे, वो ये कहते हैं कि जी जब हमारा जुलूस इधर से चला लाहौर से फैज़ाबाद तो वो पहले ही दफ़ा हो गया था। ओ अल्लाह के बंदे, अक़ल के अंधे, अगर वो पहले ही दफ़ा हो गया था तो तुझे क्या ज़रूरत थी यहाँ से लोगों को लेके जाने की, नामूस रिसालत के नाम पर हुज़ूर का नाम लेकर तुम लोगों के बेटों को लेके गए, उनको मरवाया है, 44 शुहदा फिर करवाए हैं। जब वो चला गया था, तुम्हारा मसला हल हो गया, फिर तुम फैज़ाबाद उधर वज़ीराबाद तक क्या लेने गए हो? वो उनको पूछने वाला कोई नहीं। असल में वो ये समझते हैं कि जो सारे आगे बैठे हुए हैं ना, वो भेड़-बकरियाँ हैं। उनको जिस तरफ लगाओगे वो लग जाएँगे, क्योंकि उनका सेंस तो है नहीं, ना उन्होंने सोचना है, ना सवाल करना है, सिर्फ़ वाह-वाही करनी है तो। बहरहाल वो एक टर्म यूज़ करते हैं कि ना रज़ाकाराना तौर पर चला गया था। मैंने कहा रज़ाकाराना तौर पर क्या होता है? इसका ये मतलब है कि उस हरामज़ादे दी माँ मर गई सी ते वो चला गया सी रज़ाकाराना तौर पर 1-2 महीने की छुट्टी के लिए। या इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी मिन्नतें की, उसके पाँव पकड़े कि हम तो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये कुछ मौलवियों का दिमाग ख़राब हुआ है। आप इस तरह करें अपने मुल्क में चले जाएँ, आप उधर बैठ के अपना सारा सिस्टम निज़ाम चलाते रहें, तो कुछ टाइम बाद जब ये ठीक हो जाएँगे आप वापिस आ जाएँ। ये मतलब है रज़ाकाराना तौर पर। भई हमारा तो एजेंडा ये था, एक सोल हमारा पर्पस नामूस रिसालत का वो ये है कि हमने उनसे डिप्लोमैटिक रिलेशंस कट ऑफ करने हैं। एम्बेसडर को किक ऑफ करना है, मतलब सफ़ीर को मुल्क बदर करना है, नॉट कि ये फक्की देनी है और गोली देनी है। और हर बार मुआहदात के सेंस में हमें लॉलीपॉप दिया गया को इनको तहरीक लब्बैक को। और ये बच्चे थोड़ी हैं, वो बाबा जी कहते हैं ना आशिक बहुत सयाना होता है, उसको और आशिक अपना जो फ़ैसले करने में इश्क वो खुद बड़ा दलेर होता है, वो इस तरह की उसको समझ सारी आ रही होती है। अब आगे अवाम को या कारकुनान को बेवकूफ़ बनाना है अनदर थिंग, लेकिन जो इनके ऊपर मामलात चल रहे हैं मुआहदात की शक्ल में या व्हाटएवर जो भी दैट वाज़ अनदर थिंग। और मैं ये गारंटीड बात कर रही हूँ कि सारे मामलात में जो मुआहदे जितने भी हुए हैं, धरने, ऑपरेशन सब कुछ, एक ज़र्रा भर भी जो फ्रांस वाला मामला था उसमें कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। अगर हुई है तो कोई मेरे साथ जो हलाली माँ का बेटा मेरे साथ आके दलील के साथ बात करे, आई एम एग्री टू एडमिट, ओके? बल्कि ये बात साद भाई ने एडमिट किया कि हम नहीं करवा सके ऐसा। मैं आपको अभी इसके बाद ना वो साद भाई के क्लिप सेंड करती हूँ जिनमें उन्होंने ये कहा है। तो अच्छा साद भाई से मेरी बात जो हुई एंड यहाँ हुआ उनका, मैंने उनसे अर्ज़ की कि आप समझा दें फिर आप कब करेंगे? हम अभी चुप करके बैठे हैं, या तो हमने 44 शहीद दे दी या तो हम सारे शहीद हो जाएँ। फिर तो भी बात भी ख़त्म हो जाए कि कोई बचे ही नहीं ज़िंदा तो हम क्या करें? अब जब ये सारा कुछ हमने कर लिया तो अब हम कह रही हैं हम क्या करें? ये तो एक्सक्यूज़ है। और ये एक्सक्यूज़ भी बिल्कुल फ़ज़ूल है कि हम जब गर्दनें ही हमने रसूलुल्लाह के लिए रखे हुए हैं, हमने पढ़ा ही ये है सबक बाबा जी से, तो फिर हम क्यों खामोश होके बैठे हैं? आखिर पे फिर साद भाई ने मुझसे ये कह के जान छुड़ाई कि आप आज वज़ू करके सोइएगा, बाबा जी ना आपको ख्वाब में आके बताएँगे सारा। तो मैंने उनसे अर्ज़ की मैं तो आगे भी वज़ू में सोती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम वज़ू में रहती हूँ। तो ऐसा है कि अगर साद भाई बाबा जी ने ना बताया तो फिर? उन्होंने कहा नहीं बताएँगे। मैंने कहा नहीं दूसरा ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना मेरे पास, मुझे अगर ना बताया तो फिर? उन्होंने कहा मैं जुर्मदार हूँगा। तो अर्ज़ फिर मैंने उनसे ये की कि मिलते तो आप हैं नहीं कि 2 साल की बड़ी मेहनत के बाद मुझे आपसे मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ है। तो लेकिन मैंने जवाब आपसे ले लेना, फिर मैंने छोड़ना नहीं है। तो कहते हैं ठीक है। मैंने कहा देख लेना साथ भाई, मैंने पूछ लेना। कहते हैं ठीक है। मैं आ गई उस वक़्त। ये बात है 5-6 अक्टूबर की बात है। 6 अक्टूबर सुबह 2:30 बजे की बात है, सहरी के टाइम की। उसके बाद बाबा जी का उसका वेट करती रही मैं। बल्कि काफ़ी दिन मैंने वेट किया। कोई ख्वाब, कोई कुछ नहीं बाबा जी ने किया, कुछ भी नहीं मुझे बताया। वैसे ही दिल तड़पता, फड़कता, जलता रहा। तो मैंने साद भाई को कॉल की, उनसे मैंने अर्ज़ किया कि मुझे नहीं बाबा जी ने बताया, आपने मुझे कहा था कि आप बता देंगे। तो अब मुझे आप ही बताएँ, क्योंकि आप ही अमीर हैं, हम तो आपसे ही सवाल कर सकते हैं। तो 1 बार, 2 बार, कई बार मैंने उन्हें कॉल की, फिर वो हवेलियाँ वाला बीच में मामला आ गया। उसके बाद फिर काफ़ी बार मैंने बात करने की कोशिश की। उसके बाद फिर मैं बाबा जी के उसका वेट करती रही, क्योंकि उनसे तो मुझे कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। उनसे क्या, किसी से भी नहीं मिला। ये 2 साल से जितनों-जितनों से मिली हूँ, जिन-जिन से बात की है, सारे के सारे दरबारी। बल्कि अल्लामा हसन रज़ा साहब से तो मैंने ये अर्ज़ किया था, नईम भाई से भी मैंने कहा था। मैंने कहा पता क्या बात है, आप लोग ना खाते हैं उसके बाप का, कि बाबा जी ने तहरीक बनाई थी ना, तो तहरीक की वज़ह से लोग तुम्हारे हाथ-पाँव चूमते हैं, तुम पे फूल फेंकते हैं। तुम क्यों खाते हो उसके बाप का, इसलिए तुम्हें वो लगता है ठीक, उस पे तुम सवाल नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मैं तो भई अपने बाप का नहीं खाती, मुझे हुज़ूर देते हैं, इसलिए फिर मेरा तो सवाल करना बनता है और मुझे उनके सिवा नज़र कोई नहीं कुछ आता।
बहरहाल साद भाई ने मुझे कॉल पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, बल्कि आखिरी कॉल पे तो उन्होंने काफ़ी हार्श होके मुझसे बात की और गाली देते हुए ना फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मैंने कहा उस बाबा जी का खैर से गुज़र जाए। फिर मेरे पास एक ही रास्ता था, वो ये कि मैंने अपना हुलिया बदला, लड़कों वाला लिबास पहन के ना मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में जुमा पढ़ने के लिए मैं गई। तो मैंने कहा ये तुम जो बातें करते हो ये सारे कि उम्र से सवाल हो सकता है मिंबर पे, इस्लाम बड़ा डाढ़ है, उम्र को भी पकड़ लेता है। तो इस्लाम डाढ़ है तो फिर मिंबर पे साद को भी तो पकड़ लेता है। मैंने कहा चलो मिंबर पे जब तकरीर कर रहा होगा ना फिर सवाल करके देख लेंगे। चलो मेरे सारे तरीके गलत सही, मैं गलत सही। तो अब मैंने ये बाबा जी के उर्स के बाद जो इमीडिएटली आफ्टर उर्स जो फ्राइडे था ना, उस जुमे को मैंने उधर जुमा पढ़ा, लेकिन वो साद भाई ने नहीं, अनस भाई ने पढ़ाया। तो मैं जुमा पढ़ के जैसे-तैसे भी वो मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया था, कोई किसी को पता क्या डाउट भी नहीं हुआ। तो वो वैसे भी बाबा जी ने सिखाया हुआ है कि इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। और वैसे भी अकल मुहकम अज़ लिबासे चूनो चंद और इश्क उरियाँ अज़ लिबासे चूनो चंद, कि ये तो अकल सोचती है ना कि ये क्या होगा, पकड़ ही जाऊँगा तो क्या होगा या हालात नहीं ठीक। तो इश्क तो ये सोचता है कि सिर्फ़ मेरे महबूब की रज़ा किसमें है। ये बाबा जी का पढ़ाया हुआ सबक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से याद है, और बाबा जी की लगाई हुई आग इश्क की नहीं बुझती, वो नहीं ठंडी हो सकती है। तो ख़ैर क्योंकि अनस भाई ने जुमा पढ़ाया, उनसे मैंने अब सवाल क्या करना था। मैंने वो वैसे ही 2 फ़र्ज़ जैसे बाकी सब लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि किसी को डाउट तो करवा भी नहीं सकती थी। पढ़ के मैं आ गई मस्जिद से बाहर। तो उसके बाद फिर 2-3 वीक गुज़रे। ये अब फ्राइडे आज वाला मैंने उधर पढ़ा है मस्जिद में। ऐसे ही मैं चली गई अंदर, तो कोई नहीं किसी को पता चला, मैं अपना जाके दुरूद शरीफ वग़ैरह पढ़ती रही। तो अब जब साद भाई आए तशरीफ़ लाए, उन्होंने जब खुतबा शुरू किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का चूँकि महीना स्टार्ट होने वाला है, तो उन्होंने इसी टॉपिक पे सारा खुतबा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब उन्होंने नामूस रिसालत के लिए अपनी सल्तनत दाँव पे लगा दी, सब कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सहाबा ने सब कुछ दिया। तो अब इन बातों पे ही मैंने खड़े होके सवाल करना था कि साद भाई जब सब कुछ दिया है हुज़ूर की इज़्ज़त के लिए और बाबा जी ने हमें पढ़ाया भी ये है, तो आपकी इस खामोशी का क्या मतलब है फ्रांस वाले मामले पे? क्यों खामोश हैं अभी तक? और अगर जो कोई पूछे तो उसका साँस बंद कर दिया जाता है कि उसको सवाल करने का भी आपसे हक नहीं है। अब मैं चूँकि उधर ही बैठी थी मस्जिद में, वो सारा जुमा मैंने उनका सुना, तो मैंने खड़ी हो गई, मैं मेरे पास स्पीकर था, माइक स्पीकर। तो क्योंकि आवाज़ मैंने कहा साद भाई तक पहुँचे, 5वीं 6ठी सफ में, लास्ट सफ में थी मैं, हॉल में ही ना अंदर मस्जिद के। तो मैं खड़ी हुई, 10-15 मिनट उन्होंने तकरीर कर ली थी। तो वो पीछे से वो चादर ली हुई थी ना ऊपर सर्दी की वज़ह से, चूँकि वैसे भी इमामा शरीफ और सारा बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन वो चादर भी फिर मैंने ऊपर कर ली। तो वो पीछे से किसी लड़के ने मेरी चादर खींची, उसको मैंने कहा, "क्या है तकलीफ़ तुम्हें? पीछे करो, मुझे साद भाई से बात करनी है।" तो फिर वो एक बार चुप कर गया, दूसरी बार उसने चादर खींची, मैंने उससे कहा, "भई मैं लड़की हूँ, मुझे साद भाई से बात करनी है, पीछे रहो, तुम क्यों मुझे खींच रहे हो मेरी चादर बार-बार?" वो फिर पीछे हो गया। इतने में मैं खड़ी रही, मैंने 1-2 बार बोलने की कोशिश की, साद भाई को पता तो चल गया था। ऐसा हो ही नहीं सकता, 1.5 साल से एक बंदा उसके पीछे पड़ा है, उसको पता ही ना चले। और वो सयाना इतना है, पता तो उसको सारा चल गया, तो उसने फिर वो सिक्योरिटी वाले 2-3 आ गए पास मेरे, "जी, हाँ जी, बाद में बात कर लेना जुमे के।" मैंने कहा, "बाद में क्या होती है? मैंने सारा कुछ करके देखा हुआ है। इधर ही मुझे बात करनी है, लोगों के सामने करनी है और मिंबर पे करनी है।" तो वो कहते हैं आहिस्ता बोलो। मैंने कहा क्यों आहिस्ता बोलूँ भई? मैंने एक बार माइक में बोला साद भाई, 2 बार मैंने उन्हें मुखातिब किया, 1-2 बार माइक में ना, फिर वो 2 3-4 सिक्योरिटी वाले आ गए और आगे दरबारी कुत्ते जो हैं उधर, उसके उसके जो दर पे पलते हैं, फिर ज़ाहिर है वो उनका मालिक तो होगा ना। तो वो एक ने मेरे से माइक खींचा, आगे से स्पीकर उसका उतर गया, वो दूसरा मेरे हाथ में ही रहा। तो फिर मैं बोलने लगी, मैंने कहा साद भाई मेरी बात सुने। वो दे रहा था खुतबा, बीच में ही लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत नारे जानबूझ के लगवाने लग गया ना, कि लोगों का ध्यान जो उधर जा रहा था। मेरे आगे तो वो 6 7 8 आगे खड़े हो गए दरबारी, कुछ सिक्योरिटी वाले। मैंने उन सबसे यही कहा कि पीछे रहो मुझसे, मुझे इधर खींच के बाहर नहीं ले जाना, मैं लड़की हूँ, मुझे साद भाई से बात करनी है, सवाल करना है। बताने का मेरा सिर्फ़ ये एक ही मकसद था कि मुझे यूँ घसीट के ले ही ना जाएँ, मुझे बात तो करने देना जिस मकसद के लिए मैं आई हूँ। तो कोई नहीं उन्होंने मेरी सुनी। एक बार तो वो पीछे हो गए, लेकिन फिर जब मैंने माइक में बोला ना, फिर उन्होंने मुझसे माइक भी खींचा और फिर वो आ गए पास। "आप जुमे के बाद मुलाकात कर लें।" मैंने कहा, "मैंने सब कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं होता, मुझे इधर ही बात करनी है लोगों के सामने।" तो साद भाई को अब मैंने 2-3 बार मुखातिब किया, उसने तो जानबूझ के कान बंद कर लिए थे, आँखें भी बंद कर ली थी। तो नारे वगैरह लगवाए, फिर भी जब मैं पीछे एक चेयर पड़ी थी, मैं उस पे खड़ी हो गई। मैंने कहा, "साद भाई अगर उमर से मिंबर पे सवाल हो सकता है ना, तो साद रिज़वी से भी हो सकता है। मेरी बात सुने, मुझे बात करनी है आपसे।" ये मैंने ऊँची आवाज़ से जब बोला ना, वो मुझे पहले ही कहते सिक्योरिटी वाले, "आहिस्ता बोलें, आहिस्ता।" मैंने कहा, "क्यों आहिस्ता बोलूँ भई?" तो जब मैंने ये ऊँची आवाज़ से बोला ना, फिर इस तरह हुआ कि वो साद साहब ने स्पीकर उतारा अपना, माइक वो जो लगा कॉलर, माइक उतार के रखा और जाके सुनते नीचली। जैसे उनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। वो व आखिरु दावाना पढ़ के ना जाके सुनते पढ़ने लग गए। और वो सिक्योरिटी वाले जब भी मैंने ऊँचा बोला, तो वो चेयर समेत उन्होंने उठाया, मुझे बाहर ले आए और पता नहीं फिर वो चेयर बाहर से कैसे निकाली और वो उठा के ना बाहर उन्होंने फेंक दिया, मस्जिद से बाहर ले आए। गली वाली साइड से ही ना, ला के फिर उधर से वो पीछे एक था दरबारी कुत्ता, शहज़ाद रिज़वी। रिज़वी तो वैसे भी लगाना उसके नाम के साथ मुनासिब नहीं, शहज़ाद उसका नाम है।
अब वो बार-बार धक्के देई जाए, "चल ऊपर, तू है कौन? तेरा ये" तो वो बड़ी उसने गालियाँ भी दी और भी बड़े बकवासात किए, बदतमीज़ी काफ़ी की। फिर ज़ुबान तो ज़ाहिर है मेरी भी क्यों बंद रहनी थी। मैंने कहा तुम दरबारी कुत्ते हो, उसके टुकड़ों पे पलते हो, इसलिए तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। तो फिर ऊपर जब ले गए, ऊपर फीमेल वाली साइड से ना ऊपर ले गए, ऊपर जाके और भी काफ़ी आ गए, आसिफ भाई भी खड़े थे पास ही, वो भी आ गए, अली वज़ीर भी और भी काफ़ी 2-4 लोग। तो आसिफ भाई ने ख़ैर कोई बात भी नहीं की, ना उन्होंने बदतमीज़ी की, ना धक्का वग़ैरह दिया। वो बाबा जी फरमाते थे ना कि हलालियां दियां संत नहीं हुंदियां, हलालियां हलाली अपनी आदतां तो पहचाने जांदे ने। तो वो शहज़ाद ने तो काफ़ी बदतमीज़ी की, उसने 2 बार हाथ भी उठाया, मैं लगाऊँगा, मैंने कहा लगा ना भई, तेरे से मैं डरती हूँ, अगर मैं डरती होती तो ऐसे क्यों करती, मार के दिखा तू। 2 बार उसने हाथ लगाया, बिल्कुल मारने लगा, मैंने कहा मार ना, मैंने तो मुँह आगे किया, मैंने कहा मार। तो ख़ैर मारा तो नहीं उसने, लेकिन काफ़ी बदतमीज़ी की। तो तू कौन है? तो ये है, वो है। मैंने कहा तुम में से किसी की है ज़रूरत उससे जाके पूछे फ्रांस वाले मामले पे, उसका है तुम में से कोई गिरबान पकड़ने वाला? तुम सारे दरबारी हो। अब जब मैं ऐसी बातें करूँ उसको फिर गुस्सा आया, उसने काफ़ी बदतमीज़ी की शहज़ाद ने मुझसे। अब चूँकि मेरे पास आखिरी हल ही ये था कि 2 साल से मैं जो ज़लील हो रही थी, कोई भी नहीं सुन रहा था मेरी। अगर सुन भी रहा था तो रिस्पॉन्स ऐसा कि जिससे मुझे सैटिस्फैक्शन ही नहीं हो रही थी। तो इश्क अपने फ़ैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है, तो इश्क का फ़ैसला था, ख़ैर मैंने किया ये। और वैसे भी हमने तो बाबा जी से सीखा हुआ है कि हज़रत उम्मे अमारा चली गई जब मैदान उहद में हुज़ूर पे हमला हुआ, और हज़रत खालिद बिन वलीद की जो ज़ौजा थी हज़रत खुला, वो भी तशरीफ़ ले गई, और बाकी वो सारे मामलात हज़रत खंसा, और फिर जंग यमामा में भी चली गई। जब अपना बेटा भी वहाँ शहीद करवाया, उससे पहले नामूस रिसालत पे शहीद करवाया, ख़त्म नबूवत पे अपना बेटा भी, जिसके टुकड़े-टुकड़े किए जिनके मुसैलमा कज़्ज़ाब ने। तो वो तो सारी बातें जब सीखी हुई हैं तो फिर अमल भी तो करना बनता है ना। तो बहरहाल अब वो ये चीज़ मशहूर कर रहे हैं, कोई कोई एजेंसी की लड़की थी, मस्जिद में बैठे वालों को ये कहा है कि तुम लोग अपने मुँह बंद रखो, किसी से बात ना करो। मैंने कहा कौन-सी एजेंसी भई, मुझे तो पता भी नहीं एजेंसी क्या होती है। मैं आई एम एडवोकेट महफूना अफ़ज़ल फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन, और मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो मेरा कोई एजेंसी से ताल्लुक नहीं, ना मुझे पता है एजेंसी होती क्या है। मैं अपना आईडी कार्ड ओरिजिनल और पंजाब बार का जो लाइसेंस है वो भी साथ लेके गई थी, पॉकेट में था मेरी। मैंने कहा कोई पूछेगा या कहेगा तो मैं तो वेरिफ़िकेशन भी करवा दूँगी। भई एजेंसी के तो अलहदा होते हैं, कार्ड होता है, और एडवोकेट तो वैसे ही इंडिपेंडेंट होते हैं। बल्कि जो प्रोसिक्यूटर या अटॉर्नी वगैरह होता है गवर्नमेंट का, तो उसका भी लाइसेंस वो जिस तरह हमारे होते हैं वो नहीं होते। तो बहरहाल मैं अपनी वेरिफ़िकेशन के लिए ना मैंने अपने पास रखी हुई थी अपनी चीज़ें। वेरिफ़िकेशन उन्होंने नहीं की, उसने तो उठा के बाहर मारा ना। अच्छा, अब जिस इस्लाम का तुम नाम लेते हो उसमें तो तुम कहते हो कि हातम ताई की बेटी जो काफ़िर थी, उस पे भी हुज़ूर ने अपनी चादर मुबारक दी। ठीक है, ऐसे ही बेटियों के साथ सलूक होता है। और तुम जो बर्मा, फ़लस्तीन और कश्मीर की बेटियों के बारे में बात करने वाले, अपनी एक बेटी के साथ तुमने ये सलूक किया। अच्छा चलो मान लेते हैं, रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग मैं गलत थी, मैंने गलत किया। तो अब मुझे उठा के मस्जिद से बाहर फेंकने का क्या मतलब था? भई अगर ख़वातीन को, फीमेल को इंटरव्यू दिया जा सकता है, फीमेल्स के साथ ग्रुप फ़ोटो ली ली जा सकती हैं, सेमिनार के नाम पे, साइंस सेमिनार और फलाँ-फलाँ के नाम पे, तो एक फीमेल को अगर उसने इतनी जुर्अत कर ली है मस्जिद में खड़े होके तुमसे सवाल करने की, तो तुम जवाब क्यों नहीं दे सकते? भई वो भी तो दिया जा सकता है ना। जिस इस्लाम की तुम बात करते हो, इसी इस्लाम में उमर से मिंबर पे सवाल हो सकता है, सिद्दीक़ अकबर की बात कर रहे थे उस दिन साद भाई, उनसे और सबसे हो सकता है, तो साद रिज़वी से क्या नहीं सवाल हो सकता? चलो वो भी बात एक अलहदा है, दूर की बात। अभी परसों की बात है बाबा जी की तो, और बाबा जी तो ये फरमाते थे कि अब तक मैंने जब से पढ़ना शुरू किया, मैं अपने एक-एक दिन का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। चलो साद रिज़वी से हम 2 साल का हिसाब नहीं माँगते, सिर्फ़ एक वलीमे का ही हमें हिसाब दें। ये बताएँ ना कि वो करोड़ों का वो जो इतना आलीशान वलीमा वो कैसे हुआ था? भई कौन से बाबा जी तेरे लिए मुरब्बे छोड़ के गए हुए थे जो बेच के तूने वलीमा किया? अवाम के पैसे ज़ात पे लगाना ये कौन से इस्लाम में लिखा हुआ है? जवाब दो ना हमें। असल उसे पता है ना कि सारे आगे मेरे नॉनसेंस लोग बैठे हुए हैं, दरबारी वाह-वाह करने वाले। और वो दरबारी कुत्ते बदमाश और दरबारी गुंडे जिनसे उठवा के बाहर फेंक दिया है, भई ये बेटियों के साथ सलूक होगा, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान में ये सलूक होता है, इनका ये एजेंडा है। बाबा जी की तो बात ही और थी ना, उन्होंने तो वो पेशावर में एक नॉन मुस्लिम को टिकट दिया, लड़की थी वो मुसलमान हो गई, वो तो बाबा जी का सलूक था ना, उनकी तो बात ही नहीं। ये पिछलों की बात हो रही है ना, ये जो बड़े ठेकेदार बने हुए हैं अब इस्लाम के और नामूस रिसालत के, कि एक मामला मेरा सिर्फ एजेंडा ही ये है कि फ्रांस वाले मामले पे मुझे क्लियर करें, मुझे जवाब दें। और जवाब बनता है लेना, क्यों तुमसे उम्मीद से नहीं लेना तो और किससे जवाब लेना है? कोई गलत काम भी नहीं मैं कर रही हूँ। लेकिन चलो, अच्छा अगर इतना ही मान लिया कि मैंने गलत किया, मैं एजेंसी की हूँ, वो यही समझ रहे थे ना कि ये एजेंसी की कोई लड़की है। अव्वल तो ये बात हो ही नहीं सकती, साद रिज़वी ने 100% आई एम 100% श्योर उसने मुझे पहचान लिया था, और उसी ने इशारा किया उन्हें। जब वो इशारा किया, वरना वो दरबारी कुत्ते उनकी ज़रूरत होती है हाथ लगाने की, वो उसके इशारे पे ही उठा के उन्होंने मुझे बाहर फेंका मस्जिद से। वो ले गए थे उठा के बाहर। तो अब उधर जो लोग बंदे जिन्होंने जुमा पढ़ा है, वो उनकी भी सेंस पे बंदा हैरान है। चलो ख़ैर वो तो जो भी थे, या उन्हें नहीं पता था मामला या व्हाटएवर।
مسئلہ یہ تھا کہ مجھے صرف تکلیف اتنی ہے کہ مجھے سوال کیوں نہیں کرنے دیا؟ بھئی اگر تم اسلام کا نام لیتے ہو تو سوال کرنے دیتے ہو، سوال کا جواب دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ اور اگر تم سچے ہو تو 500 لوگوں میں جو تمہارے مقتدی ہیں، جن کے تم امام ہو، ان کے سامنے جواب لینا تو بنتا ہے نا، لیکن نہیں، وہ اس کو نظر جو آ رہا تھا، اٹھا کے اپنے گنڈوں سے اٹھوا کے باہر پھینک دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ میں غلط بھی تھی، چلو میں مان لیتی ہوں ریگارڈلیس آف ایوری تھنگ میں نے غلط کیا، میں ایجنسی کی تھی ان کے نزدیک، یا انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، یا چلو کافر ہی سمجھ لیا۔ اب کوئی کافر بھی ہو لیکن وہ بیٹی تو ہے نا، جب میں بتا رہی ہوں کہ میں لڑکی ہوں اور مجھے بات کرنی ہے، مجھے سوال کرنا ہے، میرے ہاتھ میں اسپیکر ہے، نہ تو میں نے بندوق اٹھائی ہوئی جو میں نے اس کو گولی مار دینی تھی، اور اسپیکر میں نے صرف سوال ہی کرنا تھا، تو سوال کا جواب اس کے پاس ہوتا تو وہ دیتا نا۔ وہ بابا جی کہتے ہیں نا بھائی مردوں کی طرح کھڑے تو ہونا تھا نا، وہ جنا تو ایک ہی کافی ہوندا ہے، بابا جی کہتے تھے۔ تو اب وہ اگر مرد تھا تو وہاں کھڑا ہو کے کم از کم چلو وہ مجھ سے پوچھ لیتا اپنے درباری کتوں کو سائڈ پہ کر رکھ کے، ہاں میری بہن تجھے کیا تکلیف ہے؟ تم نے یہ اگر اتنی عزت اپنی داؤ پہ لگائی ہے، ادھر تم 500 1000 مردوں میں آئی ہو تو کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ سوال کرو میں جواب دیتا ہوں، اتنا تو کر لیتا نا بھائی، کھڑا تو ہوتا نا، ادھر مرد بن کے میری بات تو سنتا نا ایٹ لیسٹ۔ اس نے تو وہی اپنے درباری گنڈوں کو اشارہ کیا، چلو بھائی اٹھا کے اس کو باہر پھینک دو۔ اس کے بعد اوپر لا کے انہوں نے مجھے روم میں بند کر دیا، ادھر بچیاں اوپر ہوتی ہیں، میں تو خیر ان سب کو جانتی ہوں، میں تھوڑی نا ادھر پہلی بار گئی تھی، 2 سال سے میں ان کے جوتوں میں رول رہی ہوں، تو مجھے ایجنسی کی 1 منٹ میں بنا دیا کہ جیسے مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے جتنی بڑی بڑی ہستیوں کے آپ کے سامنے نام لیے، ان سب سے چاہے پوچھ لینا، سارے مجھے جانتے ہیں اچھی طرح، ایویں نہیں جانتے کہ کوئی جھوٹ بولے تو اس کا حال کوئی نہیں ہے۔ تو خیر اوپر وہ بچیاں تھی تو انہوں نے مجھے روم میں کر دیا بند، بند کو کیا کہ انہوں نے اندر جا کے وہ اندر آ کے میرے پاس بیٹھ گئی، وہ مجھے جانتی تھی، میں اچھی طرح جانتی ہوں ادھر میں کتنی بار گئی ہوں، تو ان سے تھوڑی بہت بات کی، اس کو وہ شہزاد تو کہتا ہے اس کو لگاؤ دو لگاؤ، تو وہ انہوں نے کہاں مارنا تھا، پھر وہ علی وزیر بھائی تھا، اس نے منع کیا، کہتا نہیں نہیں مارنا نہیں ہے، تو بہرحال مار بھی لیتے تو مجھے فرق تھوڑی پڑنا تھا، ایسے اتنی جرت ایسے تھوڑی کر لی تھی، اور بلکہ میں تو یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید وہ پولیس یا ایجنسیز کے حوالے یا یہ وہ کر دیں، تو وہ بیچارے انہیں جوگے کوئی نہیں ویسے، تو میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہو کے گئی تھی، جب اتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا تھا ایسی تھوڑی نہ میں نے اٹھایا تھا، اور میں اب بھی تیار ہوں بالکل، اور نہ میری بس ہوئی ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کر کے ختم کر دیا جائے گا، یا بابا جی نے جو عشق کی آگ لگائی ہوئی ہے وہ ایسے ہی بجھ جائے گی، اور بھائی ہمیں بابا جی نے یہ سکھایا ہے 1400 سالہ تاریخ میں، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سکھایا ہے، مسئلہ ناموس رسالت کے حضور کی عزت کی جب بات آ جائے تو کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا، تو وہ فرانس والے معاملے پہ اتنا بڑا کمپرومائز کیا، بھئی وہ اس جو ایگریمنٹ ہے اس کی کنسیلمنٹ کی وجہ کیا تھی، اس کو ایکسپوز کیوں نہیں کیا گیا؟ کون سی اسلام کی تاریخ میں ایسا ایگریمنٹ ہوا ہے جس کو کنسیل کر کے تو پھر مسلمانوں کے آگے خیر خواہ بھی بنے رہے ہیں؟ خیر اس کے بعد بھی کتنے معاملات ہوئے، ہالینڈ والا مسئلہ دوبارہ ہوا وہ رمضان میں، جب وہ جمعے کی تقریر پہ فرما دیا کہ اس کا لائے عمل ہم دیں گے، ہم آ رہے ہیں، تسی بچے لگ دیو، تو وہ اگلے جمعے تک خود بھی بھول گئے، اور عوام تو ایسی ہوتی ہی ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد انڈیا والا مسئلہ ہوا، وہ بھی ایک ریلی نکالی جی 2 گھنٹے کی، وہ جس طرح لوگوں کو کہتے تھے نا کشمیر والے معاملے پہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے دھوپ میں کچھ نہیں ہوتا، اس طرح خود بھی ناموس رسالت کے نام پہ 2 گھنٹے کی ریلی نکال کے انڈیا والا، بس وہ ناموس رسالت کا حق ادا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا بھائی۔ اس کے بعد ابھی یہ پرسوں کی بات ہے، 16 دسمبر کے نیوز پیپر میں آیا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے توہین رسالت کے جو کا مبینہ مجرم ہے اس کی ضمانت پہ آن بیل اس کو ریلیز کر دیا، لوور کورٹس میں، کورٹ آف سیشنز میں اور ہائی کورٹ میں بھی نے بھی اس کی جو بیل تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اس کی ضمانت نہیں ہوئی، تو سپریم کورٹ نے اس کی بیل لے لی، اس کی ضمانت منظور کر دی، تو کوئی بھی کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، جو سعد رضوی کو بھی نہیں پتا، بلکہ یہ والا جمعہ تو میں نے خود سنا ہے سارا لائیو، انہوں نے بات ہی نہیں کی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ فرانس والے معاملے پہ تو نیچے ہونا شروع ہوئے تھے نا، تھوڑا کمپرومائز، تھوڑا 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 پھر ہوتا گیا، اور اب سارا کچھ ہی بھول گئے ہیں، تو بلکہ اس کے بعد یہ جو حویلیاں واقعہ ہوا تھا نا، اس پہ بھی میں نے ساتھ بھائی کو کال پہ ہی میں نے عرض کی، میں نے کہا آپ کیا کہ گئے تھے جلوس، تو وہاں آگے بھی نکلتا ہے عید میلاد النبی کا، تو نکلا بھی تھا بھائی، وہ جو ایک مین پوائنٹ تھا رستہ اس طرف جلوس نہیں آتا، حضرت امیر معاویہ نام کا جو چونک ہے ادھر وہاں، تو آپ نے تو کہا تھا بھائی ہم وہاں جائیں گے، لے کے جائیں گے، تسی بچے لگے ہو، ڈی سی یہ لگتا ہے وہ، پھر وہ جیسی اس کی ٹون ہے، وہ جیسی باتیں، بہرحال وہ اس طرح ان کو لگتا ہے کہ بابا جی کی طرح باتیں کر کے یہ بابا جی بن جائیں گے، گال تے ساری اندر دی ہوندی ہے، خیر تو میں نے یہ عرض کی ساتھ بھائی کہ وہاں جانے کا پھر کیا مقصد تھا، جب لوگ اتنے شہید کروا لیے اور پھر 3 کلومیٹر واپس سے آپ آ گئے، اب خود اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ 2.5 3 کلومیٹر ابھی ہم پیچھے تھے، ہم اس جگہ پہنچے بھی نہیں، تو ہمیں مار دیا، ہم پہ گولیاں چلائی، تو یہ تو وہ، بھائی اگر مرد بن کے گئے تھے تو ادھر جا کے واپس آتے، جہاں کا کہہ کے گئے تھے، جلوس تو وہاں پہلے بھی نکلتا ہے میلاد کا، تو یہ کیا مطلب ہے پیچھے سے لوگوں کے بیٹے مروائے اور پھر واپس آ گئے؟ تو مجھے پتا کیا کیا انہوں نے فون پہ ساتھ بھائی مجھے کہتے ہیں کہ میں اس لیے واپس آ گیا کہ میں اپنے بندے نہیں مروانا چاہتا تھا، میں کہا کمال ہے بھائی، تو بڑا لیڈر ہے، بابا جی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، وہ جو کہتے تھے کہ سارے جان بھی غرق ہو جائیں حضور کی عزت کے لیے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سارے بھی ہم مر جائیں،
तो तुम्हें बड़ी फ़िक्र है अपने बंदों की कि अपने बंदे नहीं मैं मरवाना चाहता था। फिर बंदों को ले जाने की उधर क्या ज़रूरत थी? भई ये तुम्हें पता उन्होंने पहले तुम्हारे गले में फूलों के हार डाले, मैं पहले भी गोलियाँ शैली नहीं मारते। तो बंदों को मरवाने के लिए तो लेके गए थे भई, अगर मर्द बन के लेके गए थे तो उधर जाके आना था। फिर पीछे से स्टेप बैक करने का, जाके मैदान जंग से भागने का क्या मतलब है? कि मैं इसलिए भाग आया हूँ कि मैंने अपने बंदे नहीं मरवाने थे। भई फिर तुम लड़ने क्या गए थे? जंग में करने क्या गए थे? कमाल बात है वैसे। लेकिन हैरत इस चीज़ की है कि जो सारे के सारे कारकुनान हैं, वो उनका ऐसे साँस बंद है कि उन्हें पता ही नहीं है किसी बात का। और फ्रांस वाले मसले पे तो क्लियर कट मौक़िफ़ है, बिल्कुल गारंटीड बात मैं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ़ अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया, लॉलीपॉप दिया गया, हुकूमत से इन्होंने लिया और इनको तो सारी बातों का पता भी था, शूरा और व्हाटएवर ये सारे। और आगे कारकुनान को इतने आराम से और जिनके शहीद हुए हैं, फिर उन्होंने तो पता नहीं ख़ैर सवाल इनसे कोई करते भी होंगे, तो उसके साथ ये सलूक होता है जो मैंने बताया है आपको। बहरहाल एट लास्ट मैं ये बताऊँ कि मेरा किसी एजेंसी से ताल्लुक नहीं, मुझे पता ही नहीं एजेंसी क्या होती है। मैं बताया मैं एडवोकेट ममूना अफ़ज़ल मंडी बहाउद्दीन से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, तो जिसको भी बात करनी है मैं रेडी हूँ बात करने के लिए। हाँ, लेकिन बात कोई हलाली करे। अगर किसी का क्राइटेरिया ये है ना कि साथ गलत नहीं हो सकता क्योंकि वो बाबा जी का बेटा है, तो मेरी उससे अर्ज़ ये है कि अगर लाइन से उतर जाए ना, तो कातिबे वही हज़रत अमीर मुआविया का बेटा भी लानती हरामज़ादा यज़ीद पलीत होके मरता है। ठीक है, वो क्राइटेरिया नहीं रखना, क्राइटेरिया हमें बाबा जी ने वो दिया है और वो एक है कि मोहम्मद अरबी का आबरूए हर दो सरास्त, कसे के खाक दरिश नीस्त खाक बरसरिऊ कि हुज़ूर ही दोनों जहानों की इज़्ज़त है, जो हुज़ूर के दर की खाक नहीं हुआ उसके सर पे खाक डाल। और साथ में बाबा जी ने ये एक्सेप्शन क्यों नहीं रखी थी कि अगर मेरी औलाद हो तो वो उनके लिए माफ़ी है। वो जिसका ये क्राइटेरिया ना कि वो बाबा जी का बेटा वो तो फिर दूर ही रहे। अब कोई हलाली है अगर बात करने वाला जिसको नामूस रिसालत वाला मौक़िफ़ जो बाबा जी ने समझाया है, वो समझ आया है और बाबा जी के असल मिशन मिशन समझ आया है, तो मैं तैयार हूँ बात करने के लिए कोई भी है मेरे से। मैं ना कोई एजेंसी से मेरा ताल्लुक है, ना मुझे किसी एजेंसी का पता है। मैंने तो बताया ना कि मैं एडवोकेट हूँ, इंडिपेंडेंट पंजाब बार कौंसिल का मेरा लाइसेंस है, वो मैं तैयार हूँ दिखाने के लिए। तो चलो अब मुजरिम तो वो मेरा है क्योंकि उसने खुद कहा था उस दिन कि मैं आपका जुर्मदार हूँगा अगर बाबा जी ने आपको ख्वाब में आके ना बताया। तो अर्ज़ मेरी साद भाई से ये है कि साद भाई आप सिर्फ़ मेरे मुजरिम नहीं हैं, मेरे जुर्मदार नहीं, आप पूरी उम्मत के जुर्मदार हैं कि बाबा जी ने हमें एक रास्ता दिया था हुज़ूर की इज़्ज़त पे पहरा देने के लिए। हुज़ूर के गुलामों, दीवानों को हुज़ूर के कदमों में जगह मिले, उस रास्ते पे चल के, उन पे कुर्बान होने की। आपने हमें उस प्लेटफ़ॉर्म से महरूम किया, हमसे छीना है वो प्लेटफ़ॉर्म और वो जो नेमत-ए-उज़्मा हमें दी थी हुज़ूर ने बाबा जी के ज़रिए। आपने उनसे हमें महरूम किया तो आप मुजरिम मेरे नहीं सारी उम्मत को महरूम किया है, सारी उम्मत के मुजरिम हैं। तो मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में मेरे जाने का ये मकसद था कि मैं अर्ज़ कर सकूँ मिंबर पे वो खड़े हुए और अगर वो ना जवाब दे सके तो वो उसको उस मिंबर पे खड़े होने का हक नहीं, मैंने गिरबान पकड़ के उसको नीचे भी उतारना था। बल्कि वो उसके दरबारी फिर गुंडे जो थे वो उनको तो ये नहीं था गवारा कि मैं उसके पास पहुँच जाती। तो चलो कोई नहीं, कल क़यामत का दिन भी आना ही है हुज़ूर के सामने और बाबा जी के सामने इंशाअल्लाह साद भाई मैं आपका गिरबान पकड़ूँगी, मैंने छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और जुर्मदार मेरे आप हैं, मुजरिम मेरे नहीं आप पूरी उम्मत के मुजरिम हैं। और इंशाअल्लाह हुज़ूर के सामने क़यामत वाले दिन मैं आपका गिरबान पकड़ूँगी। फिर मैं देखूँगी कि आपके ये दरबारी कुत्ते, आपके टुकड़ों पे पलने वाले ये दरबारी गुंडे, वहाँ आपको कैसे बचा लेंगे। और तकलीफ़ मुझे कैन यू बिलीव इस चीज़ की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है बल्कि दिस थिंग मेक्स मी क्राई कि वो उसके साध के पास रहते हैं ना उधर, कि वो उनको पैसे ज़ाहिर देता होगा, वो उसके टुकड़ों पे पलते हैं, दरबारी गुंडे या दरबारी कुत्ते। तो वो उन्होंने अपने मालिक के करीब नहीं मुझे जाने दिया, उठा के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ये भी लिहाज़ नहीं किया, भई वो एक लड़की है और वो बेटी मैं बता जब रही हूँ। तो चलो वो उन्होंने एजेंसी की बना दिया, मैं कह रही हूँ वो काफ़िर भी बना देते, तो फिर भी उनका ये सलूक उन बातों के मुताबिक नहीं बनता जो बातें वो करते हैं इस्लाम की। तो बहरहाल उन्होंने अपने मालिक के करीब नहीं पहुँचने दिया। तो तकलीफ़ इस बात की होती है, हम जब खुद को हुज़ूर के साथ निस्बत देते हैं कि हम हुज़ूर के गुलाम हैं, हुज़ूर के कुत्ते हैं, तो हमारे होते हुए कोई फिर कोई हुज़ूर के बारे में बात कर दे और फिर हम कुछ भी ना कर सकें, तो ये चीज़ बहुत अज़ियत देती है, बहुत ज़्यादा जलता है इससे दिल। और तब भी जब बाबा एक तो अलहदा बात है ना हमें मसला नामूस रिसालत का पता ना हो। एक बात के बाबा जी ने सारी ज़िंदगी अपना समझाया ये सबक है और वो तो अपना एक हक अदा करके चले गए। तो अब हम पीछे वाले जो हैं हम फिर वही पपेट्स बन जाएँ कि हमें जो बता रहा है मिंबर से जो आ रहा है वो ठीक है, उस पे हमने वाह-वाह करनी है। हमारा कोई सेंस नहीं है, हमारा सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। तो हमारे होते हुए जब हुज़ूर के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर सारी उम्मत को मर तो जाना चाहिए, ये तो बात यकीनन है। लेकिन हमें क्योंकि एक प्लेटफ़ॉर्म मिला था, हम उस प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़े हुए थे, अपना नामूस रिसालत पे जो भी काम करने का हक अदा करने की कोशिश कर रहे थे, हक तो कोई भी अदा नहीं कर सकता है। तो उस प्लेटफ़ॉर्म से जिन्होंने हमें महरूम किया है, उनसे हमारा सवाल करना बनता है और महरूम ऐसे नहीं किया, मिंबर पे अभी भी बातें होती हैं कि हमारा सब कुछ हुज़ूर के लिए हाज़िर है, हमने ये किया, हमने वो किया।
भाई जो कोई सवाल कर रहा है उसको बताओ तो सही ना तुमने क्या किया है। फ्रांस वाले मामले पे एक ज़र्रा सी भी पेशरफ्त नहीं हुई। सिर्फ़ ड्रामा, मिसमैनेजमेंट, लोगों को ज़लील करवाया, सिर्फ़ लोगों के बेटों को 44 लाशें जो शहीद 44 करवाए, उनका जवाब किसने देना? उनके बदले में क्या हुआ? भई फैज़ाबाद में तो 8 हुए थे, वज़ीर का इस्तीफ़ा लिया था बाबा जी ने, वो सारे मामलात हल किए थे और उसके बाद अब क्या कम से कम क़यामत तक किसी की जुर्अत नहीं हो सकती कि वो जो ख़त्म नबूवत को वो कानून है उसमें अमेंडमेंट या तरमीम करने की कोशिश भी करे। कि उनको पता होगा कि चलो एक 2 टाँगों वाला भी जो चल नहीं ना सकता है, उसके भी अगर अंदर कुछ हो, इस्तिकामत और इश्क की दौलत तो वो सब कुछ हो सकता है। तो मैं अभी भी बस मेरी नहीं हुई, जब तक साँसें हैं ना इंशाल्लाह अपने मिशन पे खड़ी हुई हूँ। वो बाबा जी ने सिखाया, जो बाबा जी का पढ़ाया हुआ सबक है, वही सिर्फ़ याद है। तो ये अगर इन सबको ये लगता है कि ये सब कुछ करके उठा के बाहर फेंक देंगे मस्जिद से या फिर अपने वो दरबारी गुंडों से उठवा के बाहर फेंक दिया या मस्जिद में रहने वालों को चुप करवा लिया उनको, तो ये सब कुछ कर लेंगे तो फिर ये इनकी भूल है। चलो अब ना सही, क़यामत वाले दिन तो सही ना, गिरबान मैंने इसका पकड़ना है, इसको मैंने छोड़ना नहीं है, सबसे बड़ा ये मुजरिम है। और सिर्फ़ इतनी बात नहीं है बल्कि शाह जी से जब मैं लास्ट टाइम आई उनको मैंने लिख के दे के आई कि बाबा जी ने हमें इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दिया था ना, तो अब जिसने हमें उस प्लेटफ़ॉर्म से महरूम किया ना कोई भी है वो चाहे गौस पाक दा पोतरा है या दाता साहब दा दोहतरा है, ये तो शाह जी ने खुद ही फ़रमाया था एक क्लिप में। तो मैंने आगे ये भी लिखा कि चाहे बाबा जी खादम हुसैन रिज़वी का बेटा है वो कोई भी है, वो उसका ख़ात्मा ईमान पे नहीं होना, वो काफ़िर होके मरेगा। अगर इसी रविश पे चलता रहा ना तो ये काफ़िर होके मरेगा, काफ़िर होके मरेगा। तो बाकी फिर सारे हिसाब-किताब क़यामत का दिन है जो सही फिर। इधर तो फिर जो मर्ज़ी कर लें सलूक, इधर तो ठीक है तुम्हारे दरबारी तगड़े थे, उन्होंने उठवा के बाहर फेंक दिया, तुम्हारा अच्छा था सारा प्रोटोकॉल। तो उस वक़्त मैं गिरबान पकड़ूँगी तुम्हारा और फिर मैं देखूँगी कौन बचाएगा तुम्हें इंशाअल्लाह हुज़ूर के सामने। और चलो मरना तो है ही ना इधर। अब ये आज का खुतबा भी गुज़र गया, जुमा भी गुज़र गया, ये दिन भी गुज़र गया, ये टाइम भी गुज़र ही जाना है इंशाअल्लाह।